केम छो अहमदाबाद क्या सब छाछ पी के हाँ आमरस आमरस मैंने भी पिया ना। अभी बहुत हो गई 9 to 5 की बातें, मार्केट की बातें शुरू करते हैं। ओके सो आई एम किशन फ्रॉम हार्डी एंड किशन। वी मेक कंटेंट ऑन फाइनेंस। पर आज मैं इतना बताना चाहता हूँ कि मेरे को मेरी पूरी लाइफ में ऐसा लगता है कि आई एम वेरी प्रिविलेज्ड। ओके and the most privileged I feel about my life is having a brother. Okay, because as a younger brother he has given me the freedom to fail. And I think if anyone wants to succeed in his life, they have to have that freedom to fail. Okay, he has made me make mistakes that he never could. Okay, I think a lot of elder brothers out here would relate that lot of parents put प्रेशर ऑन द फर्स्ट चाइल्ड कि तू ये मत कर बेटा ठीक है, बट दैट सेम एल्डर चाइल्ड अंडरस्टैंड्स कि एक बार करने तो एक्सपीरियंस आएगा. तो आई जस्ट वांट टू से दैट माय बिगेस्ट प्रिविलेज इन लाइफ इज टू हैव अ ब्रदर हु इज माय बिजनेस पार्टनर, हु इज यू नो आज के टाइम पे कलयुग है, 10 धोखे खाते लोग बिजनेस में, अलग अलग लोगों के साथ पार्टनरशिप करते हैं वगैरह करते हैं. आई नेवर हैड टू एक्सपेरिमेंट दोस थिंग्स. आई हैड माय best trustable partner born with me. Okay, and I think that's the best thing God could privilege me with, and I just want to say thank you to Hardik for that. Okay, while talking about lucky, privilege and everything, lot of people here would think कि मेरे पास पैसा आ गया ना बस मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. How many of you think that? Just raise your hands. नहीं, अरे very mature crowd है यार. Yeah, there are some people. Okay, so being a finance creator, it's rare to come and say this, but I think money cannot solve all your problems. Okay, the reason I'm saying this is because you can call yourself lucky only when you have those people you want to spend that money with. If you don't have those people, you're not going to be able to make that money count in your happiness. Okay, तो कभी भी अगर कोई भी चांस मिले तुम्हें तो कभी अपने पापा के साथ आईपीएल मैचेस देख लिया करो, अपने दोस्तों के साथ कॉलेज के टाइम पे नहीं तो कॉलेज के बाद मेमोरीज बना लिया करो, और ऑफ कोर्स अपनी मम्मी के साथ बैठ के उनकी सास की थोड़ी चुगली कर दिया करो. Okay, I think if you do these things, somewhere in your life you will realize that there are a lot of more things important than just money. Okay, and while you may think that money is very important, but it's a human made thing, it's a materialistic thing. You can print it you can earn it, you can scam it. I mean बहुत लोग scam करके भी पैसे कमा लेते हैं, but that's what I'm saying, money is materialistic thing, it's human made. But having people to spend that money with, that's luck. I mean you can't choose where you are born with. तुम मुकेश अंबानी घर पे पैदा हो गया, अनिल अंबानी के, you can't choose that, right? But at the same time, the family you are born with, the brother you are born with, the friends you meet in your life, those are uncontrollables. If you have those people, if you have those comfort things in your life, then that's what makes you lucky. Okay, if you have that, then call yourself lucky. पैसा तुम कमा लोगे आदमी तो कल कोई ना तो कोई चीज फिगर आउट कर लेना, वरना प्रिंट करना सीख लेना. पर that's the one thing. Okay, so always feel that having people to celebrate success is more important. That's how you make yourself feel successful rather than just having money. Okay, चलो ऐसे तो बहुत लाइफ की बातें हो गई. I mean let's talk about something जो लाइफ को एकदम लाल कर चुका है, the लाल street. Okay, I'm here to talk about few things about market. Me and Hardik, we run a finance page. We primarily make content on stock market. There have been instances जहाँ पे हम लोग को DMs आते हैं बहुत सारे कि सर आपने बोला, ऐसे instances आते रहते हैं.
हेलो, 1 2 3 1 2 3 सब छास आमरस वालों को आवाज आ रही है? आए, क्या बात है, मैं जाग गया मार्केट की बातें सुन के, थोड़े थोड़े पीछे से जाग गया। ओके, सो जो भी ये सेकेंड हाफ में मार्केट की बातें होने वाली है, आई थिंक एनीवन हु हैज इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एंड ये हम लोग के इंस्टाग्राम पे भी इस चीज के ऊपर बात नहीं की अब तक। सो आई जस्ट थॉट आई वांट टू ब्रिंग आउट समथिंग प्योरली वेरी वैल्यूएबल टू यू गाइस। ओके, सो एज आई सेड, मी एंड हार्दिक वी रन अ फाइनेंस पेज जिसमें हम लोग स्टॉक मार्केट के ऊपर ज्यादा बातें करते हैं, ज्यादा कंटेंट बनाते हैं। एंड वी यूजुअली पुट कंटेंट व्हेन द मार्केट गोज डाउन, वी पुट कंटेंट ऑन द फैक्ट दैट यू शुड बाय द डिप। ओके, बट हम लोग को डीएम्स आते हैं ऐसे बहुत सारे, तो बोला सर आपने बोला था 26,000 से मार्केट 24,000 आया निफ्टी, इफ पीपल नो व्हाट इज इट। तो मार्केट जब 26,000 से 24,000 पे आया तब आपने बोला बाय द डिप, 24,000 से 22,000 आया तब भी आपने बोला बाय द डिप, 22,000 से 20,000 पे आएगा तब भी आप बोलोगे बाय द डिप। तो ये डिप कब तक डिप होते रहेगा, और कभी रिटर्न्स भी मिलेंगे इसके कि नहीं मिलेंगे? नाउ आई एम अम्यूज्ड बाय द फैक्ट दैट लोगों को लगता है कि वोलेटिलिटी इन द मार्केट इज एन प्रॉब्लम, while it's actually an asset to the market. Okay, अगर वोल्टाइलिटी नहीं होती ना मार्केट में, तो you will never earn more returns in market than an FD. Okay, क्योंकि अगर मार्केट एकदम लीनियर फॉर्म में जाएगा then it's an very stable asset. Okay, जो ये वोल्टाइलिटी आती है मार्केट में, that gives you an opportunity कि तुम कम दाम पे खरीद के ज्यादा दाम तक होल्ड करो, and you get the alpha returns that you are into the market for. अगर तुम्हें 8-9% रिटर्न चाहिए तो you can go for the FDs, right? लेकिन जो वोल्टाइलिटी है मार्केट में, this is an asset and lot of people are scared to understand that. I will tell you what, कोई चीज 100 रुपए से 50 रुपए पे आती है, okay, you lose 50% of the value, but वही चीज 50 रुपीज से वापस 100 रुपीज पे आती है, you gain 100% returns. This is a small concept of compounding. This is how the upside average of compounding works, and this is a eighth wonder of the world, and lot of people refuse to understand that. This is very basic, लेकिन volatility से डरने से अच्छा volatility का फायदा उठाओ, because lot of people don't understand that buying the dip is actually keeping you above the game. ठीक है, 26,000 से 24,000, 22,000, 20,000, 18,000 भी चला गया निफ्टी। ओके, आज नहीं तो कल वापस से ऊपर आएगा। इंडिया ब्रिटिशर्स के अंदर तो नहीं आ रहा वापस से कि निफ्टी बंद हो जाए। those extreme conditions are not going to happen. Okay, black swan events कभी होंगे, we don't know, कि धरती खत्म हो जाए, 2012 जैसा कोई सीन हो जाए, you don't know those things. Okay, you can count on them. लेकिन आज नहीं तो कल इंडिया is the most fastest growing economy in this world. Are you really thinking that यहाँ से कभी भी निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा, वापस से 26,000 नहीं जाएगा 18,000 से? It will. Okay, eventually it will. But at the same time, people have that volatility risk कि मुझे risk नहीं देना है. But if you have actually bought at 18, 20, 22, 24, you will have higher returns like 40 to 45%. Just speaking very vaguely, कि 45% returns मिलेगा, and that will be much more higher than FDs or any other less volatile asset. So understand the first thing, volatility is an asset to the market, not a problem. If you understand this, you will panic less, you will buy more sensibly. अभी मैं एक 9th वंडर बताता हूँ स्टॉक मार्केट का. दिस हैज बीन वेरी अंडररेटेड एनालिसिस, एक पार्ट ऑफ एनालिसिस जो बहुत लोग नहीं करते. एंड यहाँ पे मुझे नहीं पता कि कितने लोगों के पास अपने डीमैट अकाउंट है या फिर पोर्टफोलियो है जिसके अंदर स्टॉक्स है या नहीं, क्योंकि मैं रेस ताकि मेरे को समझे कि कितने लोग मेरे ये कंटेंट से बहुत वैल्यू प्रोवाइड करना. बहुत सारे इन्वेस्टर हो गए भाई. आई मीन अहमदाबाद कैसी चल रही है डब्बा ट्रेडिंग? Okay, so great. The 9th wonder in the stock market is the credit reports. Okay, I don't know. यहाँ पे लगा सकते क्या मेरे PDF का? Okay, I will try to explain orally. Okay, 9th wonder is the credit reports. अब credit reports होते क्या है? जो भी स्टॉक मार्केट में एक कंपनी लिस्टेड होती है उसके अंदर एक नॉर्म है
कि अगर तुमने लोन लिया है, वो कंपनी ने अगर लोन लिया है, दे हैव टू गेट अ क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट। ओके, अभी वो रिपोर्ट बनाता कौन है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, जो कि सेबी रेगुलेटेड रहते हैं एंड दे आर हाईली रेगुलेटेड। आई एम नॉट जस्ट सेइंग रेगुलेटेड, दे आर हाईली रेगुलेटेड। तो उनको एक अनबायस्ड रिपोर्ट बनाना पड़ता है। ओके, अगर सपोज मेरा कंपनी लिस्टेड है एंड आई हैव टेकन इवन 1 करोड़ ऑफ लोन, आई हैव टू गेट द क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट। ओके, एंड जब मैं वो रिपोर्ट निकालने जाता हूँ तो दैट एजेंसी लिटरली comes in my office, meets me, the owners, management, फैक्ट्रीज चेक करते हैं, परफॉर्मेंस चेक करते हैं, बिजनेस को बहुत ही इन डेप्थ रिसर्च करते हैं और बताते हैं कि एक्चुअली में बिजनेस कितना सस्टेनेबल है या नहीं। ओके, तो ये जो पूरा रिपोर्ट है, ये कोई इन्वेस्टर पढ़ता ही नहीं है, which is a very bad thing, because when you are investing in stock market, you are not investing in just stocks, you are investing in companies, you are taking a part of the companies investing. Okay, trading का बात अलग हो गया, but this, if you are investing, then you need to know the companies all in and out, मतलब कि उसका स्ट्रेंथ क्या है बिजनेस का, उसका वीकनेस क्या है, सब कुछ पता होना चाहिए। सिर्फ ऐसा स्टॉक 100 रुपए पे, अरे बहुत सस्ता लग रहा है ले लो, दिस इज नॉट द लॉट ऑफ दिस क्वेरीज कम आउट इन द इन आवर डीएम्स के अरे 10 रुपए का स्टॉक है, वो तो आधे तो का 100 हो जाएगा, 1000 रुपए का स्टॉक कब लाख रुपया होगा। That's not how the markets work, right? You have to first understand that you are investing in a company. If that company performs well, in longer run, it will create wealth for you. The credit rating reports I'm talking about, it includes 3 things. जिसमें पता चलता है कि एक क्रेडिट रेटिंग मिलता है। If the company and business is very good, it is reliable, उसका बिजनेस परफॉर्मेंस अच्छा है, कंपनी के वो धंधा करने आता है, ठीक है, इट इज अ स्टेबल बिजनेस, तो फिर यू कैन से उसको एक AAA रेटिंग मिलेगा। ओके, एंड अगर कंपनी बहुत खराब है, विजय माल्या, नीरव मोदी, यू नो दोस काइंड ऑफ कंपनीज जहां पे बहुत ज्यादा फ्रॉड, स्कैम्स और ये सब हो चुके, दोस कंपनीज विल डेफिनेटली गेट अ डी रेटिंग। दिस इज डिफॉल्ट। ओके, ये कंपनीज डिफॉल्ट कर चुके हैं। इसके बीच में आते हैं BBB रेटिंग्स, BB रेटिंग। आई लाइक टू चूज कंपनीज with BBB, BB ratings and everything, जो कि अपग्रेड मिल रहा है उनको। ओके, मैं अपग्रेड वाली कंपनीज को क्यों चूज करता हूँ? जो AAA है वो पहले से बहुत फैंटास्टिक बिजनेस कर रहा है, ठीक है, बट अगर तुम चूज करते हो कोई बीच का कंपनी जो इंप्रूव कर रहा है, तो देयर इज अ गुड चांस दैट स्टॉक हैज मोर अपसाइड पोटेंशियल। वो कंपनी के पास और अपसाइड पोटेंशियल है और बहुत बड़ा एक्सपांड कर सकता है अपने बिजनेस को। ओके, so that's why you have to choose the middle part of the credit rating report. At the same time, the company should be safe, मतलब मैनेजमेंट कभी कोई गोची नहीं करना होता है, मतलब you can say that management should be trustworthy and the fundamentals of the company should be decent. Okay, if I'm being very technical, then please raise hands. So फिर क्या, okay, there are few people that think that I'm very technical. Okay, I'm just trying to explain you in a very simple terms that whenever you are investing in stocks, you are investing in companies, right? And as a retail investor, we have very limited resources to actually research those companies very in depth. But when you are reading these credit rating reports, you actually understand कि वो कंपनी के अंदर क्या क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, very recently there's a pharma stock. This is not a recommendation, just to clarify, क्योंकि आजकल लोग एकदम तुरंत पकड़ लेते हैं। This is not a recommendation or anything. This is just an experience that I want to share so that you can understand the importance of credit rating and how to actually see it. It would be great if I could show you the slides as well, but it's fine. So there was this company, Natco Pharma. Okay, it's famous among the lot of investors. उसके क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट में लिखा था कि उसका एक वीकनेस है कि उसका 2026 में एक पेटेंट एक्सपायर हो रहा है। ओके, एंड वो पेटेंट जिस भी उसका फॉर्मुलेशन था उससे उसका हाईएस्ट रेवेन्यू आता था। ओके, तो दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट इट्स रेवेन्यू फॉर द 2026-2027, राइट? तो उसके चक्कर में स्टॉक नीचे आता है, या फिर देयर कैन बी अ लॉट ऑफ स्पेकुलेशन अराउंड इट, बट लॉट ऑफ पीपल डोंट नो इट बिकॉज दे नेवर रेड द रिपोर्ट्स. It is right there, and this credit rating reports for the last 3 years, it's completely free. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा सिर्फ वीकनेस पढ़ो या स्ट्रेंथ पढ़ो, बट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द बिजनेस यू आर इन्वेस्टिंग इन. सो आई होप तुम खुद के पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर खुद के डैड के या फिर जो भी तुम्हारे
पोर्टफोलियोज है उसके अंदर जो भी तुम्हारे स्टॉक्स है, एक बार जाओ, screener.in is the website where you can find the credit rating reports of any company you want. जाओ लास्ट 3 इयर्स का क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट्स पढ़ो, अपने बिजनेस को जो भी तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, तुम्हारा हार्ड अर्न मनी को इन्वेस्ट कर रहे हो, अंडरस्टैंड द बिजनेस योर स्टॉक इज डूइंग, इट्स वीकनेस, इट्स स्ट्रेंथ. कल को कुछ हुआ तो यू शुड नॉट बी शॉक्ड, अरे ये कैसे हो गया. यू शुड नो द कंपनी के अंदर क्या रिस्क है, क्या थ्रेट्स है. यू कैन ओनली अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग दोस रिपोर्ट्स. ओके, एंड दिस इज वेरी बोरिंग, आई विल बी ऑनेस्ट. आज अभी लोग छाछ पी के आमरस पी के बैठे हैं तो और बोरिंग लगने वाला है, लेकिन एट द सेम टाइम पैसा बोरिंग चीजों में ही बनता है बॉस. जो इंटरेस्टिंग लगता है ना, वो ड्रीम 11 जैसे काम होता है. ठीक है, सच्ची में. I wish I could literally show you the PPTs. I had put some effort in it, but it's fine. That's it. I wanted to share the 8th and 9th wonder of the markets with you guys so that you can be more aware about your investments. Thank you, Nirma University. Thank you, Ahmedabad. Thank you, TEDx, for having me here. Love you guys. Bye bye.